Good morning students, I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this second video of chapter number 10, Light, Reflection and Refraction of Science in Standard 10th. In first video we have seen about the light, we have seen the characteristic of light, we have seen that when light is incident on surface या फिर किसी object पर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है एंड एब्जॉर्ब होती है. देन आफ्टर वी हैव सीन regular reflection and irregular reflection. Okay, and then we have seen the mirror. In mirror, plane mirror or spherical mirror. Plane mirror simply that looking glass we have talked about, and then spherical mirror, concave mirror and convex mirror. Simple सा मैं अगर spherical mirror की define बोलूँ तो reflecting surface of mirror is a part of hollow sphere. अगर किसी भी reflecting mirror की reflecting surface किसी भी hollow sphere का part, hollow sphere means that plastic ball we discussed. Okay, वो plastic ball जो है, see that plastic ball, suppose मैंने वहां पर भी example बताया था कि suppose this is a plastic ball, अगर मैं इसका ये वाला part कट कर लेता हूँ और ये वाला part कट कर लेता हूँ तो this will be the spherical mirror. Okay, spherical mirror means concave and convex. तो what about the concave mirror? Concave mirror means जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर्व हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, इनसाइड. तो दिस इज कॉनकेव मिरर. ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज convex mirror, right? Now today we are going to discuss about some terms, some important terms related to the spherical mirror. Spherical mirror means two types of spherical mirrors are there, concave and convex. Concave जो inside यानी inward curved हो, reflecting surface जिसका inward curved हो, और convex जिसका outward, जो outward surface कैसा हो, reflecting surface हो, right? So today we discuss some points. So see, here I have drawn some diagram. This is spherical mirror, concave जिसको मैंने नाम दिया है MN. दिस इज Mn. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका नाम मैंने Mn रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम टू सेम मैंने नाम रखा है Mn. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो हियर आई हैव ड्रॉन कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर्व है, और ये है कॉन्वेक्स मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड कर्व है. इज दैट क्लियर? तो द फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस spherical mirror, that is pole. What is pole? So pole is about the center point. Pole is the center of the reflecting surface. The center of the reflecting surface. Center, suppose ये जो surface है इसका center यहाँ पर है तो this is pole P. यहाँ पर ये center है तो this is pole P. So the definition is what? The center of the reflecting surface of spherical mirror. स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल ऑफ द सेंटर. इज दैट क्लियर? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव की और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स की. सो दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल. इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय P. पोल जो है वो हमेशा सरफेस पर ही होता है. सो क्या लिखा है यहाँ पर? द पोल इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज अबाउट द पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज द पोल ऑफ द spherical mirror. Spherical mirror concave और spherical mirror convex. Is that clear? Now the second term. The second term, that is center of the curvature. अब center means midpoint. अब midpoint के लिए मतलब center यानी जो सबसे center में हो, बीच में हो. अब यहाँ पर ये तो center था, इसको तो pole बोल दिया. तो what is this new center of the curvature? Now see here the curvature word. एक ये है center of the curvature और इसके बाद एक और define आएगी, that is radius of curvature. तो जहां पर ये curvature word आएगा वहां पर हम hollow sphere की बात करेंगे. तो suppose अगर मैं इस hollow sphere की बात करता हूं, अगर मैं इस hollow sphere की बात करता हूं तो इस hollow sphere का जो सेंटर है वो यहां पर होगा. अगर मैं इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कट कर रहा हूं तो ये जो सेंटर है दैट इज पोल P, और अगर मैं यहां पर इसको कट कर रहा हूं तो दिस इज पोल P. ये पोल P है और ये भी पोल P है, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर.
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो हैं, एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, यहां पर कर्वेचर वर्ड आया मींस दैट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, और रेडियस की जब हम बात करेंगे तो दैट इज द रेडियस ऑफ दैट होलो sphere. So the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of which the reflecting surface of the mirror forms a part. यानी ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of the hollow sphere of which the reflecting surface of the mirror forms a part. Clear? अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब यहां पर दिख रहा है ये ना तो इस स्फेरिकल मिरर पर है ना ही इस स्फेरिकल मिरर पर है, तो ये इसका पार्ट होगा नहीं। इज दैट क्लियर? सो द पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर का कोई भी पार्ट होता नहीं है, ये तो उस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसमें से हमने ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बाहर निकाले हैं, लिए हैं। ओके, नाउ इट इज लाई आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है, ये कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो सेंटर होता है वो तो पोल कहलाता है, वो क्या कहलाता है? पोल, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. नाउ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके सामने की साइड होता है, तो सी ये कहीं ना कहीं यहां पर सी। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सामने होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? वो कहीं ना कहीं यहां पर पीछे होगा, राइट? तो क्या लिखा है यहां पर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, कैपिटल C से हम इसको मेंशन करते हैं। सो दिस इज द टू टर्म, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम which we take out that reflecting surface. So center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere. Now we discuss the next terms. Now the third term of spherical mirror is radius of curvature. अब radius of curvature के लिए मैंने last definition में ही आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ दैट होलो स्फीयर। तो ये यहां पर भी क्या होगा? डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, उस होलो स्फीयर की रेडियस होगी ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, यानी जिस स्फेरिकल मिरर में से, जिस स्फीयर में से हमने स्फेरिकल मिरर्स लिए हैं उसकी रेडियस होगी, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, उस होलो स्फीयर की जो रेडियस होगी वही स्फेरिकल मिरर्स की भी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द definition of radius of curvature, that is the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part. तो सी जिस तरह से यहाँ पर ये सेंटर है और ये सरफेस है, यानी हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका सेंटर, और हमारी रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है कि रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है कि जिसका एक पॉइंट मतलब सर्कल का सेंटर हो और दूसरा सर्कल के ऊपर हो, तो दैट इज द रेडियस। सो यहाँ पर भी सेम होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या हो जाएगा? PC, आई मेंशन हियर PC, दैट इज द R। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है? R। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। बोलो क्लियर इतना? नाउ अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part. Radius of curvature is denoted by capital R. In diagram,
PC इज इक्वल टू, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर PC. ओके, नेक्स्ट एपर्चर. एपर्चर जो है दैट इज आल्सो वेरी इजी. एपर्चर, ये जो सरफेस MN है, जो मैंने यहां पर नाम मेंशन किया MN, ये जो सरफेस MN है इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? सी, द डायमीटर ऑफ द एज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर ये कॉन्केव मिरर की और ये कॉन्वेक्स मिरर की. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी जो एजेस है MN, और यहां पर भी MN नेम्स दिए, तो उसकी जो एजेस है, डायमीटर ऑफ द एजेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जो एजेस हैं उस वो डायमीटर बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. ओके, सो द डायमीटर ऑफ द एजेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. तो एपर्चर भी समझ में आ गया. यहाँ पर फिगर में MN that is aperture, P that is pole, C that is center of curvature, and the distance between P and C that is the radius of curvature. Now principal axis. तो my dear students, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि देखिए मैंने ये जो स्फेरिकल मिरर्स बनाए हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर की लाइन बनाई है. सी दैट स्ट्रेट लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रही है. कहां से पास हो रही है? ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल P में से पास हो रही है. सो द डेफिनेशन क्या होगा इसका? द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल, यानी जो इमेजिनरी लाइन पोल P में से पास हो रही है, और एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C of a spherical mirror is called its principal axis. तो देखिए यहाँ पर दोनों spherical mirrors के लिए मैंने black color से ये line draw की है. Is that clear? Now we will discuss the next definitions. Now the next term that is principal axis. Next term that is principal axis. इससे पहले हमने क्या देखा? Pole, center of curvature, radius of curvature, aperture, and fifth one that is principal axis. Now this sixth term that is principal focus. ये जो sixth term है वो principal focus है. इसके लिए सबसे पहले आप एक बात माइंड में सेट कर लेना कि जो भी बीम ऑफ लाइट, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होगा, यानी उसके ऊपर जाएगा, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, ये प्रिंसिपल फोकस उस पर डिपेंड करता है. सो क्लियर? हमको क्या कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करके चलना है कि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर पर, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उस पर इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या प्रोसेस है वो इसमें बताई गई है. तो सी सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं कि ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है. राइट, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अब कॉनकेव मिरर में जब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ब्लैक कलर की लाइन मैंने आपको पहले भी बताया, प्रिंसिपल एक्सिस इससे पैरेलल जब कोई भी रेज है, कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल रेज जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जब इस प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है और वो कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है और यहां पर वो कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, तब क्या हो रहा है? देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मींस F, यहां पर भी F, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है. तो डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑन विच, एट विच रेज ऑफ लाइट यानी ये सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट है, लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, रेज ऑफ लाइट जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में पैरेलल जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर, यानी कि यहां पर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है. एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट. अब एक्चुअली मीट या तो हम इसको बोल सकते हैं कि सभी की सभी रेज मिल रही हैं, या फिर सभी रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी स्फेरिकल मिरर, अब चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उस पर जब हम लाइट रेज
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मिलती हैं वो पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर. सो द मिरर is called the principal focus of the concave mirror. Is that clear? Any doubt is there? I hope के बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा. सिंपल दो बातें ध्यान रखनी है कि हम कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर जो भी बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर सारी की सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. इज दैट क्लियर? When rays, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी कि when rays parallel to the principal axis are incident on a convex mirror. इंसिडेंट कॉन्वेक्स मिरर पर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट है उस पर इंसिडेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point, appear to come from a point, come from a point यानी देखिए यहां पर अब इस पॉइंट से वापस जाएंगे. ये मैंने यहां पर डायग्राम इस तरह से, इस तरह से come from a point. क्या लिखा है कि when rays parallel to the principal axis are incident on a convex mirror, the reflected rays appear to come यानी हमको ऐसा लग रहा है वो वापस आ रही हैं, appear to come from a point on the principal axis, on the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रे है वो वापस आ रही हैं तो दैट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. यानी कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रिंसिपल फोकस ऐसा ही होगा. यहां पर हमको ऐसा इमेज होगा कि जैसे वो सारी की सारी रेज वापस आ रही हैं. तो क्या होगी इसकी डिफाइन, when rays parallel to the principal axis are incident on a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. अब एक बात खास ध्यान रखना कि the principal focus of concave mirror lies in front of mirror. मिरर के फ्रंट में होगा. कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से हम प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं. वो कॉनकेव मिरर में मिरर के फ्रंट में होगा और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर. यहां पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर रियल पॉइंट होगा और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का जो पॉइंट होगा दैट इज वर्चुअल पॉइंट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल फोकस. के प्रिंसिपल फोकस है जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो लाइट है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रियली में अगर किसी पॉइंट पर मिल रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. नाउ द लास्ट टर्म दैट इज फोकल लेंथ एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. ये प्रिंसिपल फोकस हो गया. अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है सिंपली उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P and principal focus f of a spherical mirror is called the focal length. और focal length को हम small f से denote करते हैं. So the distance between this और this यानी यहाँ ये जो distance है ये क्या कहलाएगा, small f कहलाता है. तो principal focus और pole के बीच का जो distance है that is focal length. So these are the very important 7 टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. इन्हीं के बेसिस पर हम इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज ऑल दिस डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमेज फॉर्मेशन. सो आप इन सभी को अपने माइंड में सेट कर लें, लर्न कर लें और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑल द 7 टर्म्स इजीली डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. एक एक पॉइंट इसका मैंने क्लियर कर दिया है. और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.